that Dr. Anupriya has around about more than 15 years of experience in teaching, training, research, and consultancy. She is assistant professor at the School of Management Studies. Okay, now she is associate. I'm sorry, I referred the website and it was still showing assistant professor, and I took the information from there. So I would also request that the website should be updated because it's our international gateway basically. We are Doesn't known for that. matter. I'm really sorry for that, but No, it's okay. Doesn't yeah. matter at all. Yeah. So I request you now to kindly start the session, and mostly we have a mixed group as always. So there are students who have ideas in their mind, and they are still identifying ways how they can protect their ideas, how they can convert their idea into a kind of a product or a process. And there are students who even have a minimal viable product available with them, and then now they are looking forward that how to prepare a kind of a business plan, a kind of a bankable business plan, so that they can move ahead. And then there are students who have developed a prototype or are in the process of developing a prototype. This is in general we found as the various categories of students, or say the participants which we have. So now the stage is for you to take over and guide our students. Thank you. Thank you, Dr. Josna. Yeah, and again, very sorry, Oh, for please, you are embarrassing me now. It's no, okay. It yeah, doesn't matter. A teacher is a teacher. That very true, very designation true, doesn't matter much. very true. Thank you so much. All right. So, first of all, I welcome you, all the students, to this session. And Namaskar Sharma sir. And topic for today's discussion is business model canvas. And I could get the opportunity to listen to some of the discussions that you were having with Dr. Sharma. So I could get to know that basically you are budding entrepreneurs, or you are someone who is aspiring for starting their own startups, right? So as I say, when we talk of business model canvas is a strategic document which can be used for already existing businesses as well, right? And it can also be used for the budding entrepreneurs. By the budding entrepreneurs, they can also use it. As I've already, whenever I say that, the name itself suggests it is a canvas. That means whatever ideas, rough ideas that are coming to you, right, it has to be projected somewhere. And very interestingly, I will tell you that actually if you go to see how this business model canvas is being prepared, you will be amused to know that most of the time it is made on the wall with different color of post-its. एक चिपकाने वाले पोस्टिट्स आते हैं ना, तो अलग अलग कलर के पोस्टिट से अपने ऑफिस के, अपने कमरे के, अपने घर के वॉल पे ही ये बिजनेस मॉडल कैनवस बना लिया जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू बिजनेस मॉडल कैनवस, मैं आई वुड जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू to interact and to work simultaneously while we are discussing certain things. ठीक है. ये लेक्चर बेस पे नहीं होगा, लेक्चर मोड में ये नहीं होगा, ये हमारा जो डिस्कशन है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि ज्योत्सना जी ने बताया कि बहुत सारे लोग आगे के MVP पे पहुंच चुके हैं या मे बी प्रोडक्ट मार्केट फिट पे भी पहुंच चुके हैं. तो इस केस में क्यों नहीं लगा हम लोग साथ साथ में काम करते चलें, isn't it? That will be better. So पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि आप अपने हाथ में एक पेज लीजिए और एक पेन लीजिए या कॉपी पेंसिल लीजिए, वॉट एवर इज अवेलेबल. एक कॉपी का, नोटबुक का, रजिस्टर का, जो भी आपके पास हो उसका एक पेज हो, और एक पेन लीजिए. नहीं है तो इन दैट केस एज आई सजेस्टेड यू कैन यूज द वॉल ऑफ योर रूम. ठीक है. पर्दे वर्दे टंगे उसको भी आप यूज कर सकते हैं. आप अलग अलग कलर के कागज के टुकड़े ले लीजिए या पोस्टिट्स ले लीजिए अगर आपके पास हैं तो. और वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे कि जो बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसको कि एश ऑस्टरवाल्डर ने प्रपोज किया था 2005 में अपने रिसर्च वर्क में, उन्होंने ही हैज गिवन अस द 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स मींस द 9 important core areas which are to be discussed and researched thoroughly, right, before actually jumping into starting your own enterprise. और if you already have an enterprise, अगर आपके पास है, बेसिकली उन्होंने जो काम किया था वो तो इस पे किया था कि फॉर दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस क्यों ना एक ऐसा स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, ठीक है, जो उनकी ग्रोथ में और काम आए, या उनके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करें.
And later on, taking clue from his work, Alex Osterwalder, in 2008, Ash Maurya, he came up with another model which is, solely or hardcore for the entrepreneurs, that is called as lean canvas model. ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो बिजनेस मॉडल कैनवस जो है इसको तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस भी यूज कर रहे हैं, और तो एक लीन मॉडल कैनवस को उन्होंने लेके आया, और 4 की जो कंपोनेंट्स थे बिजनेस मॉडल को, उसमें उन्होंने थोड़ा सा ट्विकिंग किया, उसको चेंज किया, और बोला कि अगर आप स्टार्टअप फेज में हैं, अगर आप स्टार्टअप्स हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो मे बी ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस सेशन में, उनको हम बदल करके क्यों नहीं कुछ दूसरे तरीके से, कुछ दूसरे एंगल से देखें. बट what is an important aspect over here is you have to have a full idea, full information, all right, as to what you're going. It is a very conscious decision that you're going to make your own or establish your own enterprise. ये ऐसा नहीं कि खेल खेल में आपका मन किया तो आज, जैसे कि आपने ना कि चलो जी आज मन कर रहा है तो आज कागज की वो प्लेन बना लेते हैं, तो वैसे चलो एक बिजनेस खड़ा कर लेते. इट इज नॉट अ गेम, इट इज अ वेरी वेरी सिंसियर एफर्ट, एक पैशन है, और अगर आप उसको उस पैशन के तौर पे लेंगे तो at each and every step you will try to be very conscious while investing the whole lot of efforts, the energy, the time, even the money that you're putting into a particular business idea. So let us start. सबके हाथ में पेन है, पेपर है, कुछ लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. Few students, if you want to turn your cameras on, you can turn it on so that I can see the faces as well. और बहुत क्विकली अगर आप लोग मुझे बता सके तो उस सेशन में ना एग्जाम्पल के साथ चलने में मजा आएगा कि किसने किस तरीके के बिजनेस आइडिया पे कुछ काम किया. रफली एग्जैक्ट आप मुझे मत दीजिएगा, लेकिन कुछ एक रफ आइडिया की, या तो ये आपका आइडिया है या आपका थॉट है, और आप उसमें कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे उसको हम लेकर चलते रहेंगे. ठीक है. सो कैन आई हैव फ्यू फेसेस ऑन द स्क्रीन whom I can talk to? अपने कैमरा ऑन करिए सभी. कुछ भी अगर कर सकते हैं, 2-4 लोग जिनका अच्छे से कैमरा चल रहा हो, अगर वो कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अपने हाथ में एक पेपर और एक पेंसिल या पेन लीजिए, बिकॉज आप मुझे बताएंगे कि किस कॉलम में क्या लिखना है. मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगी कि क्या होना चाहिए, पर आपने अपने कॉलम में क्या और कैसे लिखा है, यू विल टेल इट टू मी rather than I am telling it to you, right? So shall we proceed? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्टार्टअप के जो फेजेस हैं, मैं देख रही थी कि डॉक्टर शर्मा जी बहुत अच्छे से उसको समझा भी रहे थे कि कैसे एक एक करके आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं, और अपना एंटरप्राइज खड़ा करने में जो वेरियस स्टेप्स है, कैसे आप बहुत कॉन्शियसली, पैशनेटली, वन बाय वन यू मूव फ्रॉम वन स्टेप टू द अनदर. ठीक है. और सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है वो यही होता है ना कि कौन सा जो है ऐसा सोल्यूशन है विच यू वांट टू प्रोवाइड टू द सोसाइटी और मार्केट और कस्टमर्स. ठीक है. वो कौन सा सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, नंबर 1. और अगर वो सोल्यूशन है तो उसको हम कह सकते हैं कि क्या वो MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है. क्योंकि अगर 1 या 2 इंसान की जरूरतों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इफ योर प्रॉब्लम सोल्यूशन इज सच दैट इट कैन ओनली केटर टू हैंडफुल ऑफ कस्टमर्स, maybe in that case it is not a minimum viable product. Why? Because a business idea has to be sizable enough to fetch you some money, isn't it? अगर आपके बिजनेस आइडिया में जो हो सकता है कि किसी किसी की जरूरत को पूरी करे, बट इफ इट इज नॉट साइजेबल, इतना साइजेबल नहीं है कि आपको वो प्रॉफिट कमा करके दे, तो दैट बिजनेस आइडिया इज नॉट फॉर यू. यू शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया. वो मे बी अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कोई ध्यान दे रहा होगा तो उसको डिफरेंट तरीके से, आज हालांकि इवन इफ यू टॉक ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग इशू, एंड देयर आल्सो यू नीड टू बी सस्टेनेबल ऑन योर ओन, राइट? सो एज आई सेड, in order to reach to minimum viable product you have to have the proof of concept. एक आप वेरीफाई करते हैं अपने बिजनेस आइडिया को कि वो MVP के लायक है कि नहीं है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लायक है कि नहीं है. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की स्टेज से जब आप आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम MVP टू PMF, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड देन यू ट्राई टू सी वेदर दिस आइडिया इज फिट टू बी ऑफर्ड इन द मार्केट और नॉट. वहां से भी जब आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज दैट यू, आपने भी पायलट टेस्टिंग कर ली, उसके बाद से नाउ यू आर एक्चुअली इन द बिजनेस, और आपने अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया. ठीक है. और बिजनेस खड़ा करने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है ग्रोथ स्टेज. बिजनेस खड़ा किया, कुछ साल तक उसको आप चलाते रहेंगे, वो ग्रो करेगा, और जब ग्रोथ स्टेज आएगा तो योर एंटरप्राइज इज नो मोर अ स्टार्टअप, इट इज अ वेल सेटल्ड प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस. तो ये तो एक पूरा स्टेप होता है. ठीक है. पर इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट,
वहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको कहा ना कि इन सबको, इन सारे स्टेप्स में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहीं आपको कोई किसी तरीके की डिफिकल्टी तो नहीं आएगी, अगर वो डिफिकल्टी आएगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इन सब का आंसर देता है आपको आपका बिजनेस मॉडल कैनवस। तो अब हम बिजनेस मॉडल कैनवस की अब हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल कैनवस में जैसे मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिनको कि हमें देखना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बिजनेस मॉडल कैनवस है ये एक पीएचडी थीसिस के दौरान एलेक्स ऑस्टोवाल्ड ने इसको प्रपोज किया था, विच इज वाइडली यूज्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, लेकिन ये कैनवस बनाने से पहले मैं आपको कहूंगी, जैसे चूंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे उसमें हैं कि आप एमवीपी की स्टेज में हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले तो आपके की पार्टनर्स कौन कौन से हैं, who are the people and organizations who are working with you and who are working for you। ठीक है, आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, जो भी आपका प्रोडक्ट या मार्केट ऑफरिंग को आप मार्केट को ऑफर करने वाले हैं, ठीक है, उसको बनाने से लेकर के और कस्टमर्स तक पहुंचाने में जो की पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें आपका चैनल पार्टनर भी होगा, इसमें आपके मेंटर्स भी होंगे, इसमें आपका को फाउंडर भी होगा, इसमें आपके सप्लायर्स भी होंगे, पूरा वैल्यू चेन सिस्टम में जितने जितने भी पार्टनर्स आते हैं, ठीक है, वो सारे पार्टनर्स इसमें आपके आएंगे। वो कौन से लोग हैं हु आर गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ बोथ, in terms of the technical support, in terms of the knowledge support, in terms of the financial support। क्योंकि मैंने कहा ना कि शुरुआती दौर पे जब when you start your business, आपको MVP के स्टेज तक आने के लिए भी कुछ गाइडेंस, कुछ पैसों की जरूरत होती है, कुछ फाइनेंस की जरूरत होती है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई बिफोर हैंड कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आपको इन सारे एरियाज में मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपको आगे करना क्या है वो भी आपको इसमें देखना होता है। देन आपका जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो इनफैक्ट किसके लिए है। ज्यादातर टाइम में आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टार्ट, कुछ अलग से भी जैसे स्टूडेंट्स कभी आते हैं मेरे पास अगर मेंटरिंग के लिए, व्हेन दे स्टार्ट डिस्कसिंग, तो जो द वेरी फर्स्ट एंड बिगेस्ट फ्लॉ दैट आई कैन सी और आई हैव सीन सो फार इज they assume that their product is for everyone. Let me tell you, this is not the case. The product is not for everyone. You have a specific customer group, you have a specific customer segment for whom you have created this particular product। या एक सेगमेंट ही है जो आपके प्रोडक्ट्स को लेगा, तो क्यों नहीं हम उसी सेगमेंट पे पहले ध्यान दें, या उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करें कि किस सेगमेंट के लिए आपने लिया है। इन सब पे हम धीरे धीरे आएंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ ताकि जब मैं कहूँ कि आप अपना बिजनेस मॉडल कैनवस मेरे साथ साथ बनाइए या लीन कैनवस बनाइए तो आप बना सकें। ठीक है, जो भी मैं बातें करती जा रही हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू और फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम ट्राइंग टू पोज टू यू। ठीक है, अब इन सब को करने में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके हाथ में होनी चाहिए हैंडी, कि इन सब को करने में कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, और इन सब को करने में जो कॉस्ट तो आ ही रही है, उस कॉस्ट को, और कॉस्ट आ रही है साथ में उसके रिस्क है, अनसर्टेनिटीज भी हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस ओनली, और अजम्पशंस में डिफर फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। अजम्पशंस उसको कहते हैं इसीलिए ना कि वो अजम्पशंस हैं, आप अज्यूम कर रहे हो, बट एक्चुअल में सिचुएशंस उससे डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इनवेरिएबली सभी तरीके के बिजनेसेस में रहती ही रहती है, वो है रिस्क और अनसर्टेनिटीज। सो इन, और वो तो है, यू कैन नॉट डू अवे विद दैट, वो तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, उसमें आपका कोई वश नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मिटिगेट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज दैट इज देयर। जो उस बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड है आपके बिजनेस में, हाउ वुड यू मिटिगेट। ठीक है, इन सबको हमको देखना होता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम एरियाज हम लोग को आइडेंटिफाई करने होते हैं, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऐसी कोई भी अनसर्टन, आप फिर आप कहोगे कि हाउ कैन वी बी प्रिपेयर्ड if it is uncertain, if it is a risk, do we really know it? I would say yes. Risk or uncertainties, they can be of two types. You can categorize into two different categories. ठीक है, एक वो रिस्क या अनसर्टेनिटीज होती हैं जिनका कोई क्लू नहीं होता है, विच आर अनकंट्रोलेबल, वो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन कुछ जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज होते हैं वो कंट्रोलेबल हैं, और वो आपके हाथ में, आप उसको अज्यूम करके, आप उसको फोर्सी करके, है ना, जिसके अंदर, इसीलिए बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका अपडेटेड रहना इंफॉर्मेशन से,
और हर वक्त एक तरीके की रिसर्च करते रहना, सो दैट यू कैन फोरसी द अपकमिंग प्रॉब्लम वेल इन एडवांस टू बी एबल टू कम अप विद द सोल्यूशन। जैसे ही वो प्रॉब्लम आती है आपके पास कुछ उसका सोल्यूशन है। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कीप इट असाइड, सेट इट असाइड, ठीक है, उसका स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं होती है। एंड फिर आपका देखते हैं कि आपने कॉस्ट स्टैब्लिश कर लिया कि इन सबको करने में मेरी कॉस्ट इतनी आई, देन यू हैव टू सी द रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ये कॉस्ट तो आ गई लेकिन कितना मिनिमम हमें सेल चाहिए, या कम से कम कितना हमारा कस्टमर बेस होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी ये कॉस्ट रिकवर हो जाए और हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आए, विच इज पॉपुलरली टर्म्ड एज BEP एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, योर कॉस्ट इज फुल्ली कवर्ड। हाँ, उसके बियॉन्ड जब आपका एक भी कस्टमर बढ़ता है वो आपका प्रॉफिट जोन है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल केस ले रही हूँ कि मान लीजिए कि आपका BEP आता है कि मिनिमम 100 कस्टमर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए इन द बिगनिंग। तो 100 कस्टमर तक जब आप पहुंचे तो आप सिर्फ इस बात की खुशी मनाइएगा कि आप BEP पे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, विच मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। बट उसके बाद जैसे आपके कस्टमर बेस बढ़ता है तो 100 के बाद जैसे ही 100 फर्स्ट कस्टमर आपके बिजनेस में आता है, 100 सेकेंड कस्टमर आपके बिजनेस में आता है, एक्चुअल जो आपकी खुशी देने का है वो यही है, क्योंकि ये जो 100 के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड आए, those customers they are fetching profit, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अब जो भी वो लेके बिजनेस में आ रहे हैं तो वो आपके प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे कैलकुलेट करें इन सब चीजों को, तो उसके लिए भी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, बस आपको क्विकली आपको एक टर्म बता देती हूँ। देन वी ट्राई टू सी कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है, आपका जो मार्केट ऑफरिंग है उसकी आपने प्राइसिंग कैसे रखी है वो, और कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या, व्हाट इज द CLV ऑफ कस्टमर, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जो मेरे कहने की है ये कि इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ बिजनेस मॉडल कैनवस, you need to have certain information, and if you are ready with those information, then only you should start writing your, or you should start painting on your canvas, right? Just give me a moment, it seems some office emergencies there. I'll just be with you in a moment. Sorry for the interruption. So, all right. So we were talking of painting a canvas, which will be a business model canvas. कि आपका business model क्या होगा, आपका business कैसे run करेगा, ठीक है। तो business model canvas basically वही है। तो ये क्या क्या आपको बता रहा है, ये आपको describe कर रहा है कि आपका business कैसे run करेगा, ये design भी कर रहा है कि आपका business कैसे run करेगा। It may give an opportunity to invent also sometimes, कि मे बी अगर आपको अपनी cost reduce करनी है, आप बनाते बनाते आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि कैसे हम नए तरीके से इनोवेशंस के थ्रू कॉस्ट में रिडक्शन ला सकते हैं, और मे बी इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, जो कि आपका फर्दर कस्टमर बेस बढ़ाएगा। तो बहुत सारे सवालों का कह लीजिए कि ये जवाब लेके आता है आपका बिजनेस मॉडल कैनवस। नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं वन बाय वन, एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। उसमें कौन सा नंबर 1 पे होगा, कौन सा नंबर 2 पे होगा, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। important is how is your approach to go towards it, ठीक है। हम ये जरूर देखेंगे कि जनरली हमको किस बात से शुरू करना चाहिए, बट अगेन आई वुड से इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि उस 9 जो कोर एरियाज हैं, ये 9 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें से आप किसको नंबर 1 कहेंगे और किसको नंबर 9 कहेंगे, ठीक है। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ ईज एंड कन्वीनियंस टू यू, जिसमें आपको सहूलियत हो उस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। तो जो 9 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो है, एक तो हो गया आपका कस्टमर सेगमेंट, दूसरा हो गया आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, जो आप प्रॉमिस कर रहे कस्टमर को आप दे रहे हैं, ठीक है। चैनल्स कौन कौन से हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनरशिप्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो ये 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको वन बाय वन अब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है।
ऑलराइट, आपको क्या लगता है, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी, स्टूडेंट से पूछूंगी कि वन बाय वन बताइए आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे। 9 तो मैंने आपको दे दिया, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन आई कैन स्पेल इट आउट टू यू स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इस पे साथ में काम करेंगे, तो यू हैव टू नो व्हाट आर द 9 building blocks. So if you already know, well and good, and if you don't know, then I am spelling it out once again. You please write it down and then we'll start the discussion. Okay, all right. So Rajpriya is saying that I should spell it out. So please, you start writing. One is customer segment. The other is value propositions. Third would be channels. Fourth is customer relationships. Next, revenue streams. Key resources. Key activities. Key partnerships. And then last one would be, 9th one would be cost structure. I hope we're on the same page now. अभी हम लोग equal उस पे हैं. All right? Okay. So any student, if you can tell me, any student, you can raise hand or maybe you can spell it out कि आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे। जो 9 core areas मैंने बताया उसमें से आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे। आयुष पाठक, जो मेरे स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, मैं उनमें से ही बोल रही हूँ, और बाकी लोग भी प्लीज आंसर करें। आयुष पाठक दिख रहे हैं मुझे, साहिल मंजूर, अकबर खान, अरुण कुमार, प्रवल्लिका। मैम कस्टमर रिलेशन सेगमेंट। कस्टमर, ओके, अकबर खान इज कस्टमर रिलेशनशिप। आयुष आपका क्या कहना है? चैनल्स मैम। चैनल्स, ओके, वेरी नाइस। और कोई? Ma'am, key partners. First of all, key partners build. After that, doing any channels and earning costing. Okay. Okay, ठीक है। मैंने कहा ना कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप यहीं से शुरू करेंगे, अपनी ईज और अकॉर्ड उसके हिसाब से आप शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ अरुण कुमार, ठीक है। आप नेक्स्ट, प्रवल्लिका, आपके हाथ में पेज है ना आप सबके पास? क्योंकि एंड ऑफ द डे उस पेज की फोटो क्लिक करके आप भेजिएगा अपने कोऑर्डिनेटर्स को, डॉक्टर ज्योत्सना को, डॉक्टर शर्मा को। आप उस पेज की फोटो क्लिक करके आप भेजिएगा, और मे बी उसमें हम लोग विल ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड इन दैट, ठीक है, जिसमें फर्दर आगे उसको आप बढ़ सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट आल्सो, ठीक है। तपनजीत, व्हाट डू यू से? तपनजीत, यू विल स्टार्ट विद व्हाट? कहां से आप शुरू करेंगे इसको बनाना? सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट से। कस्टमर सेगमेंट से, एक्सीलेंट। क्यों? अच्छा, कस्टमर सेगमेंट से क्यों शुरू करेंगे आप तपन, बताइए। मैम क्योंकि पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं कौन कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सारी चीजें उस पर जाऊंगा। एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी नाइस। सबसे पहले अगर आपकी जो मार्केट ऑफरिंग है वो ऐसी है, सबसे पहले आप सेगमेंट डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा कस्टमर सेगमेंट है जिसको कि मुझे टारगेट करना है, ठीक है। अब कस्टमर को पहले आप, यानी कि मार्केट को आप बहुत सारे हिस्सों में सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट मींस डिवाइड, so you can segment the entire market into various segments. You can divide the entire market into various segments, और हर हिस्सा जो है, या तो आप उसमें से 2-3 segments को चूज करें, लेकिन आई एम अज्यूमिंग सिंस यू आर स्टार्टअप्स, सो लेट अस बिगिन विद एनी वन सेगमेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सेगमेंट में, और क्या करेंगे तपन? क्या क्या पता करेंगे सेगमेंट में, कस्टमर सेगमेंट में? व्हाट ऑल वुड यू ट्राई टू नो? क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मुझे बताइए। मैम जैसे कि पहले अगर जो मेरे स्टार्टअप से रिलेटेड है, लाइक मैं अगर आइसक्रीम की बात करूं तो कितने लोग हैं जो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं डेली बेसिस पे, कितने लोग हैं जो कि मैम कोई होते हैं जैसे आइसक्रीम लवर होते हैं, कोई होते हैं जो कभी भी खाते हैं, कोई होता है गर्मी के कारण खाते हैं। तो पहले मैं सेगमेंट करूंगा उस चीज पे, ठीक है। सेकेंडली मैं सेगमेंट करूंगा जैसे कि अगर मेरी आइसक्रीम, जैसे सर ने बताया कि हेल्दी है, तो कितने लोग हेल्दी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कितने लोग नॉर्मल आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और थर्डली मैम मेरा ऐसा है कि मैं ये भी करूंगा कि कितने लोग कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं आइसक्रीम में, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेगमेंटेशन होगी। ठीक है, ओके, गुड। और
तो अब आप बताइए कि आपने क्या अभी तक कुछ सोचा अपनी आइसक्रीम के लिए कि आपका सेगमेंट कौन सा होगा? मैम अभी तो थोड़ा मिक्स सोचा है, मतलब हाँ, मैंने बताइए। सोचा जो अभी, क्योंकि मैम जैसे मैंने सोचा जो अभी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं मैंने उन्हें भी किया है। सेकेंडली जो नेचुरल आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जो हम जाते हैं 10 रुपए की आइसक्रीम लेकर खा लेते हैं, ठीक कुछ है, लोग होते हैं जो पार्टिकुलरली देखते हैं आइसक्रीम में क्या क्या डला है, ठीक है, ठीक है, तो ओके। मैं सेकंड मैंने उसका टारगेट किया है। हाँ, थर्डली जो बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लेवर या जो होते हैं बहुत मूडियल होते हैं कि उन्हें हर टाइप की न्यू फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, डार्क चॉकलेट, उस टाइप को किया है, तो मैंने 3 को टारगेट किया है मैम। यानी कि आपने जो अपने मार्केट को 3 हिस्सों में बांटा है। यस मैम। ठीक है, अभी आपने एज बेसिस पे नहीं बांटा है कि मतलब कुछ आपने बच्चों को टारगेट नहीं किया या बड़ों को इस बेसिस पे नहीं बांटा, क्योंकि अगर बच्चों को करेंगे तो मे बी यू कैन कम अप विद पॉप्सिकल्स एंड ऑल, है ना। लेकिन आपने, ठीक है, यू आर क्लियर अबाउट योर आइडिया कि आपने इन 3 हिस्सों में अपने उसको बांटा है। अब आपका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे, फिर मैं क्विकली जाऊंगी कि कैसे कैसे होगा। आप बताइए, आपने कस्टमर को बोला कि 3 सेगमेंट्स में आपने बांट दिया, ठीक है, व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू नो नाउ? आपका तो एक रेडी है ना, आपने तो शायद अपनी आइसक्रीम बना रखी है। यस मैम, Is it एमवीपी correct? तो, यस मैम, प्रोटोटाइप correct? से एमवीपी की तरफ बढ़ते हैं। यस मैम। अच्छा, तो आपने उसको, आप एमवीपी के स्टेज पे हैं। यस मैम, मतलब मैंने प्रोटोटाइप पे अब हम टेस्टिंग करवा रहे हैं और उससे फीडबैक लेके उसको हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट में आप स्पेसिफिकेशन लाने की और वैरायटीज लाने की, आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। आयुष, आपको कस्टमर और चैनल सब बताए जाएंगे, डोंट वरी। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, और जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कैसे हम अपनी बात कस्टमर तक पहुंचाएं, और बातों के साथ साथ अपनी मार्केट ऑफरिंग भी कस्टमर तक पहुंचाएं। ठीक है, मैं बहुत जनरल टर्म में आप सबसे इसलिए बात कर रही हूँ कि मुझे पता है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट या कॉमर्स के नहीं है, यू आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स, बैकग्राउंड्स, सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी जनरल। ठीक है, तो कस्टमर भी कौन कौन से, उस पर भी हम लोग आके बाद में देखेंगे। चैनल्स फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए कि चैनल वो माध्यम है जिससे आप अपने कस्टमर्स को, जो आपका टारगेट कस्टमर है, उसको आप रीच करने की कोशिश करेंगे। वो माध्यम ऑनलाइन हो सकता है, वो चैनल फिजिकल भी मोड भी हो सकता है। ठीक है, आप या तो वेबसाइट के थ्रू अपनी चीजों को सेल ऑफ करेंगे, या तो अपने स्टोर्स वगैरह खोल करके डिफरेंट मिडिलमैन को यूज करके करेंगे। यस अरुण। मैम, मैंने बोला था कि की पार्टनर से, तो की पार्टनर से हम शुरुआत रिलेट ऐसे करना चाहते हैं। मान के चलिए जो एजुकेशन लर्निंग की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वाइज हमारे एज ए स्टाफ या टीचर्स अगर होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ बच्चों तक ये सेगमेंट पहुंच जाएगा। और इस हिसाब से जी मैम, और उसके बाद सभी सब्जेक्ट का हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, ताकि हाँ बच्चों को अच्छे से अच्छे स्टडी करा सके, नोट से अवेलेबल करा सके, हर एक चीज़, एक एक चीज़ का सेगमेंट। तो मैम इस बेसिस से हमने की पार्टनर्स का सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत किया था, क्योंकि अगर हम खुद से करना चाहें तो खुद से हर एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं डिस्कस कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा सकते हैं, राइट मैम। तो जी मैम, और उसके बाद से आगे जब बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग टीचर को मे बी चेंज करना हो या फिर आगे प्रोसीड करना हो, तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट मैम। तो मेरा वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप लोग खुद ही बता रहे हैं, और आपने इस बात को प्रूफ कर दिया, जिसको कहते हैं ना कि ये जो 9, मैडम डॉक्टर ज्योत्सना ने आपकी कन्वीनियंस के लिए आपके चैट बॉक्स में उसको लिख भी दिया है, ये जो 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें कौन से वाले से कौन सा आपके लिए पहला होगा या कौन सा आपका सेंटर पॉइंट होगा, डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्केट ऑफरिंग है वो क्या है, किस तरीके का है। जैसे कि अरुण जो अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, उसमें ये इट इज वेरी पर्टिनेंट दैट ही हैज टू स्टार्ट विद पार्टनर्स, कि जो आपके की पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज है जो आपके पास हैं ऑलरेडी, जिनको यूज करके आप अपने पहला जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको अपना कस्टमर सेगमेंट पता है, मे भी आपको पता है कि आपको 10th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, या मे भी क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें आपने अलग अलग बांटा होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप एक से ज्यादा सेगमेंट लेते हैं, या एक ही सेगमेंट के लिए एक से ज्यादा मार्केट ऑफरिंग लेके जा रहे हैं, मार्केट ऑफरिंग मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके जा रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेपरेट लीन कैनवस और बिजनेस मॉडल कैनवस हर एक ऑफरिंग के लिए। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है, वैल्यू जो आप डिलीवर कर रहे हैं, हर एक के लिए आप अलग अलग सेपरेट अपना बिजनेस मॉडल कैनवस प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे
आपको उसको देख करके एक ग्लैंस में ये पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी आपके आंखों के सामने ये तीनों एक डॉक्यूमेंट में बना हुआ है, तो आपको ये देख के पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें मुझे पुश करना है अपनी चीजों को, या ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ रहा है, और कौन से वो ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें अभी आपके अपने प्रोडक्ट्स को पुश करने की जरूरत है, ठीक है। या दूसरा एंगल भी हो सकता है कि ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें आपका अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, ड्रॉप कर दियो सेगमेंट को, और जो सेगमेंट्स आपको आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, ठीक है, आप उन सेगमेंट्स को ही पकड़ रही, उनको और बेहतर तरीके से कैटर करिए, क्योंकि दैट सेगमेंट इज मेंट फॉर यू। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन वन सोल्यूशन, जैसे कि अरुण कुमार जी के केस में अगर आप कोचिंग क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने जो सेगमेंट किया स्टूडेंट्स का, उसको आप अलग अलग सेगमेंट्स में बांट लीजिए कि इस स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड के बच्चे, इस स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड के बच्चे, ये स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड के बच्चे, या तो ये बांटिए, ये आपका तरीका हो सेगमेंटेशन का, या आपका सेगमेंटेशन का जो तरीका हो वो सब्जेक्ट वाइज हो कि ये इंग्लिश, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स, ये कॉमर्स, लाइकवाइज। सो यू नीड टू क्रिएट डिफरेंट सेगमेंट फॉर, you know, you need to have, if you have different segment, then in that case you need to create separate canvas for each of the segment, right? ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका वो स्ट्रक्चर है, बिजनेस मॉडल है, जिसका कोर कंपोनेंट, उसमें से आप क्या लेके आएंगे? सेकंड नंबर पे आप क्या देखेंगे? पहले आप बताइए, मैंने कहा ना, फिर क्विकली मैं बताऊंगी आप लोगों को। एनीवन इफ यू कैन कम अप। तपनजीत, नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, या अरुण, या जो भी कोई, या आयुष, जो भी कोई शेयर करना चाहता है, जो आपका नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, आप किसको उठाएंगे? Values, okay, all right. What values are we imparting to our customers? What values are we giving them? Okay, what values? Value proposition से आप शुरू करेंगे, ठीक है। That will be your first or second. What do you propose? क्या प्रपोज करें आयुष आप? वो फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा? मैम क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप जो वैल्यू प्रोपोजिशन को आप फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक मानेंगे या सेकंड मानेंगे? कैसे चल रहे हैं आप? हम फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक मान रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। मुझे लग रहा है ऑनलाइन में चूंकि बहुत ज्यादा टाइम किल हो रहा है, इसलिए हम लोग एक एक, मैं अपने हिसाब से एक एक उसको लेके चलती हूँ, जो थॉट प्रोसेस मेरे उसमें आ रहा है उसको लेके मैं चलूंगी, ठीक है। बहुत बिजनेस, बहुत सिंपल सा, आप में से कोई मैं नहीं ले रही हूँ, फॉर टू रीजंस, वन आई एम नॉट अवेयर ऑफ, और टू व्हाई टू डिस्क्लोज इट, है ना, ज्यादा बहुत ज्यादा कि उसको डिस्क्लोज करना, अनलेस इट एक्चुअली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो मैं एक बहुत वेग सा मान के चल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या वेग सा क्या, हम लोग स्विगी या जोमेटो जैसे मान लो सर्विसेज को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, या कुछ भी आपके दिमाग में आएगा तो इन बिटवीन यू कैन से अपने उसके साथ, एंड वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। तो अगर मैं जैसे मान लो बात करती हूँ, स्विगी जोमेटो जैसे बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, तो पर आई वुड स्टार्ट विद वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, कि क्या वैल्यूज जो है वो मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहती हूँ, किस तरीके की वैल्यूज, ठीक है, और वो जो है मतलब क्या मैं उनको सिर्फ सर्विसेज दे रही हूँ या मैं उनको प्रोडक्ट्स भी दे रही हूँ, ठीक है। क्या मैं सिर्फ एग्जांपल अगर मैं जोमेटो की या स्विगी की बात करती हूँ, दैट मीन्स मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ जहां पर जो ईटरीज हैं या ईटरी जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो और जो उसके कंज्यूमर्स हैं दोनों मिल सके। तो मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? आई एम प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑलराइट, वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स बोथ आर कमिंग टुगेदर। तो आप स्विगी जोमेटो ले लीजिए, और फॉर दैट इंस्टेंस आप उबर या जो दूसरी टैक्सी सर्विसेज है, कैब सर्विसेज हैं, ओला, ठीक है, उनको आप ले लीजिए। तो इस तरीके की कोई भी सर्विसेज ले लीजिए। तो क्या हम एक्चुअली कोई फिजिकल कमोडिटी कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, या हम एक सर्विसेज पहुंचा रहे हैं जिसमें हम दोनों पार्टीज को कनेक्ट कर रहे हैं? तो व्हाट वैल्यू एम आई एक्चुअली प्रपोजिंग? नाउ आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू मैं प्रोवाइड करी, फॉर एग्जांपल कि मैं एक मीडिएटिंग पार्टनर हूँ जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलेंगे। अब हमें पता करना है कि वो एज अ मीडिएटर what all services can we provide, isn't it? Right? Am I clear? So now I would ask all of you कि आप अपने अपनी पेजेस पे अपने आइडिया का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो लिखिए कि आप क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करेंगे, किस किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कौन सी ऐसी कमोडिटीज होगी जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, ताकि उनको उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके।
आई एम जस्ट गिविंग यू 1 minute टाइम एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ में? नाउ यस मैम. ओके, Yes, ma'am. ठीक है. वैल्यू प्रोपोजिशन की जब मैंने बात कर ली, नाउ आई एम कमिंग टू कस्टमर सेगमेंट. ठीक है, कि जो भी मेरा बिजनेस प्रपोजल है, जो भी मेरा बिजनेस सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ठीक है, वैसे मैंने कहा ना कि सभी के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर उसके कुछ टारगेट कस्टमर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सेगमेंट को ही क्यों ना बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लूं. जब मैं सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लूंगी, उनका बेस डिसाइड कर लूंगी, देन ओनली आई विल बी एबल टू चॉक आउट और राइट डाउन दी स्ट्रैटेजीज और दी वेज एंड मेथड्स. स्ट्रैटेजी को भी अगर अलग कर दीजिए तो उन तरीकों को मैं कर पाऊंगी कि कैसे मैं उनको टारगेट करूं और कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स की वहां पर पोजिशनिंग करूं. पोजिशनिंग का मतलब कि से फॉर एग्जांपल अगर खाने पीने की बात आए तो लोग XYZ कंपनी का नाम लें कि हम इसी वेबसाइट पे जाएंगे, इन्हीं से ऑर्डर करेंगे और हम लेके आएंगे. कि अगर हम बेस्ट डोसा का में से फॉर एग्जांपल ऑप्शन देगा XYZ कंपनी कि बेस्ट डोसाज आर अवेलेबल फ्रॉम 3 डिफरेंट जॉइंट्स, जॉइंट सो एंड सो, जॉइंट X, जॉइंट Y एंड जॉइंट Z. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि कस्टमर को सेगमेंट कर लिया. हाँ बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं तो बीच में मत लाया करिए आप लोग. क्लास चल रही ना, बता दीजिए इसका भी है. Yes. So first of all, when I'm saying customer segments, that means है कौन से वो मेरे कस्टमर्स, वो क्यों मेरा सामान खरीदेंगे. ठीक है, और अगर वो कस्टमर्स मेरा सामान खरीदने के लिए रेडी हैं तो हम उनको पूरी तरीके से जाने. क्योंकि पूरी तरीके से अगर हम उन कस्टमर्स को नहीं जान पाएंगे, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आपने किसी ने कहा ना कि आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, और तपनजीत ने परहैप्स कहा कि वो अपनी आइसक्रीम में और कुछ क्वालिटीज ऐड करें सो दैट इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू दी कस्टमर्स. वेरी नाइस आइडिया. यस, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ये तो हमें करना ही करना है. ठीक है, दैट मीन्स जब हम कस्टमर सेगमेंट की बात करें, दैट वी हैव टू नो दी कस्टमर्स. ये है कौन, किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते पीते हैं, इनका पैटर्न क्या है, इनका प्रेफरेंस क्या है. ठीक है, इनकी लाइफस्टाइल क्या है. ईच एंड एवरीथिंग वी वांट टू नो. और परहैप्स दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों आजकल जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर का उठा करके कंपनीज को दे रहा है. कि सुबह आप एज कस्टमर, आपका जो कस्टमर है वो जब सुबह सो के उठता है तो वहां से ले करके रात में सोने तक वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसके टेस्ट क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. और उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, खर्चा करने की जो ना कैपेसिटी क्या है, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर. तो वो क्या, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. और आपको एज बडिंग एंटरप्रेन्योर उन सारे इंफॉर्मेशन को बस यूज करना है. किसके लिए, उन कस्टमर्स के लिए जो आपके सेगमेंट में आते हैं, या जो कस्टमर सेगमेंट आप टारगेट करना चाहते हैं. ठीक है, अब सेगमेंटेशन के बहुत सारे बेसिस हैं, पर जनरली जो है वो 3 बेसिस पे सेगमेंटेशन किए जाते हैं. वन इज डेमोग्राफिक. ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मे बी एज, ठीक है, या इनकम ग्रुप, इसके बेसिस पे आप कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया. फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है कि कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपके फ्रेंड्स एंड रेफरेंसेस कौन से हैं. इस तरीके से भी आप सेगमेंट कर सकते हैं. या आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है या आपका जो कस्टमर है, ठीक है, ये क्या हर वक्त वैरायटी की चाह में रहते हैं या इनको ज्यादा चेंज पसंद नहीं है. तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है. एक बार जब आपने अपने मार्केट को डिवाइड कर दिया, तब आपने देखा कि हाँ, ये मेरा पूरा मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल 4 सेगमेंट्स में बट गया. अब उन 4 सेगमेंट्स में वो कौन सा सेगमेंट मेरा है या कौन से 2 सेगमेंट्स मेरे हैं. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एंड देन यू नीड टू चॉक आउट. आप इस अपने उसी बिजनेस मॉडल में आप ये भी लिखोगे कि आपकी उस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी. ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 तरीके के लिए, जैसे कि तपनजीत ने कहा था कि उन्होंने 3 सेगमेंट्स में बांटा है, तो उस 3 सेगमेंट में क्या सबको आप एक ही तरीके से कैटर करेंगे. जो आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगा क्या सबके लिए एक ही होगा.
ठीक है, जो आपका चैनल हो गया वो का होगा क्या, वो सबके लिए एक ही होगा, जिसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। या आप कहते हैं कि अलग अलग चैनल के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अलग अलग तरीके से उनको डील करूंगा, विच इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड मार्केटिंग और डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, कि हमने अपना एक नीश बना लिया है कि चलो जी बहुत सारे लोग जो है वो आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, पर मैं एक ऐसा आइसक्रीम लेके आऊंगा, जैसे अभी बातों बातों से रिफ्लेक्ट हो रहा था, कि वो हेल्दी भी हो। क्योंकि ये आइडिया मेरे दिमाग में रजिस्टर कर गया है तपनजीत का, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप इसको अपने अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, या तो मैंने कहा कि एक दूसरा तरीका ये हुआ आपको टारगेट करने का अपने इसको, कि आपने एक नीश पकड़ लिया कि चलो मार्केटिंग इन जनरल जो देखा जाता है वो एक जंक फूड ही है ना, वो मीठा है, बहुत हेल्दी आइटम नहीं माना जाता है, पर शायद आपने अपने प्रोसेस में, जिस प्रोसेस से आपने बनाया है अपने आइसक्रीम को, उसमें आप उसमें कुछ हेल्थ एलिमेंट लेके आ रहे हैं, जोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप में भी कोई शुगर्स ऐड नहीं कर रहे हैं और व्हाटसएवर दैट इज योर एरिया। ठीक है, वो नहीं करके आपने क्या किया, अपने एक नीश बना लिया कि जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड दे आल्सो हैव गॉट स्वीट टूथ, कि उनको मीठा खाने का भी मन कर रहा है और बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी है, उनके लिए लो कैलोरी वाला जो है वो आप एक तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम। ठीक है, या माइक्रो मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, विच इज इवन उस नीश मार्केट को भी आप फर्दर तोड़िए। इसमें ज्यादातर जो जाते हैं वो डिजाइनर्स जाते हैं, वो चाहे आपका घर का इंटीरियर डिजाइन हो या आपके कपड़ों के डिजाइन हो। उसमें क्या होता है, अगर आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे से फॉर एग्जांपल हम सेलिब्रिटीज का नाम लेते हैं, तो जैसे वो सेलिब्रिटी स्क्रीन पे आता है उसका नाम दिया जाता है, उसके साथ ही साथ आता है डिजाइन्ड बाय, इनका जो भी अटायर है, जो भी इन्होंने पहना है, इनके पास जो भी एसेसरीज हैं, उनकी वॉचेज हैं, उनके शूज हैं, व्हाट्सएवर द बैग्स हैं, वो सब किसने डिजाइन किया है, से फॉर एग्जांपल बाय मनीष मल्होत्रा और एनी ऑफ द डिजाइनर। तो ये क्या है, ये आपकी माइक्रो मार्केटिंग है या इंडिविजुअल मार्केटिंग है। तो इसको डील करने का, तो क्या आप इसमें से कौन सा तरीका टारगेट करने का, कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यूज करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू हैव, whether you would like to go for undifferentiated marketing or you'll go for differentiated or niche marketing which is called as concentrated marketing or micro marketing or individual marketing। ठीक है, ये तो आपकी टारगेट की स्ट्रेटेजीज हो गई। फिर आता है आपका कि आप उसको कैसे पोजीशन करेंगे। ठीक है, कि कैसे पोजीशन करेंगे, कि हेल्दीएस्ट आइसक्रीम है या आप पोजीशन करेंगे कि रीजनेबल है, इट इज अप टू यू अगेन। वो कौन सा ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन है, वहीं से आप उठा के लेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ की इंफॉर्मेशन, इस ब्लॉक की जो इंफॉर्मेशन हुई, जो वैल्यू प्रोपोजिशन की जो इंफॉर्मेशन थी, वो कहाँ यूज हो रही, कस्टमर सेगमेंट में यूज हो रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करना चाह रहे हैं, जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है वो क्या है, कौन सी ऐसी यूएसपी है जो कि आपको लोगों से अलग बना रही है, एंड दैट विल गिव यू एन एज over the competitors that are already there in the market, या the likely competitors। सपोज आप कुछ नया इनोवेटिव लेके आ रहे हैं, तो वह ऐसा कौन सा वैल्यू जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो लाइकली कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू चॉक आउट सो दैट यू कैन पोजिशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। आपको ये देखना है कि क्या उसमें फिजिबिलिटी है, क्या आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में पोजिशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट? एम आई क्लियर? Now we'll talk of channels। ठीक है, कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं। See, the whole game is that you have to meet the customers, consumers। एक फ्लो है, अगर आप बिजनेस की बात देखिए तो एक फ्लो है, एक एंड से दूसरी जगह पर पैसे जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पर क्या जा रहा है, सामान जा रहा है या सर्विसेज जा रही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलून में जाते हैं, ठीक है, आप उनके सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ऐसे केस में फ्लो ऑफ कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है दो लोग के बीच में, उस सेलर के बीच में और आपके बीच में जो उसका कस्टमर है, एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो जो बिजनेस है वो हमेशा एक ट्रांजैक्शन होता है, दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में वो ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या मीडियम यूज करना है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगेन इट डिपेंड्स, आप वर्चुअल रहना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना चाहते हैं या फिजिकली अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप कहो जी कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप सभी प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन ही जा सकते हो और ऐसा भी नहीं कि सभी प्रोडक्ट्स के लिए आपका फिजिकली जाना जरूरी हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बात को तय करते हैं कि आपका जो चैनल होगा, क्योंकि हर चैनल की एक कॉस्ट है, वो चाहे ऑनलाइन चैनल हो जिसको हम वर्चुअल चैनल कहते हैं, या वो ऑफलाइन चैनल हो, फिजिकल चैनल हो, हर चैनल की एक कॉस्ट है। और आप एक स्टार्टअप है, ये जो हमारा टारगेट ग्रुप एक स्टार्टअप वाला है, तो क्या आप इतनी कॉस्ट
और मैंने कहा ना, हर चैनल की कॉस्ट और सबकी कॉस्ट वेरी कर रही होती है। किसी की कॉस्ट ज्यादा होगी, किसी की कॉस्ट कम होगी, लेकिन कोई ज्यादा इफेक्टिव होगा और कोई कम इफेक्टिव होगा। तो आपको वहीं पे वो ट्रेड ऑफ करना है कि एक ऐसा चैनल जिसकी कॉस्ट रिलेटिवली कम हो, ठीक है, और इफेक्टिवनेस रिलेटिवली ज्यादा हो। अगेन ये आप क्या कर रहे हैं, अपने इस वाला जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक हुआ, ये वाला जो कॉलम हुआ आपका चैनल का, आप वहां पे यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट चैनल डू यू वांट टू यूज विच ब्रिंग्स यू और विच इज यूजफुल फॉर यू एट अ मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, तो वो चैनल आपका कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट किया, मार्केटिंग कम्युनिकेशन आप ये भी कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम यही चैनल, क्या सेम चैनल आप यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने में या नहीं। ठीक है, अब कौन, जैसे मैंने कहा ना कि आपके जो चैनल्स होते हैं वो वर्चुअल हो सकते हैं, ऑनलाइन, वो तो बहुत अच्छा है जी, ईजी है। या आपने एक बार कोई वेबसाइट बनाया, या आप सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर के, जैसे कि आप, अगेन इफ आई टेक एग्जांपल फ्रॉम तपन जी, तो क्या आप अपने चीजों का ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करेंगे, या कुछ आप फिजिकल चैनल्स भी यूज करेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए, कि जो ऑलरेडी जो आइसक्रीम सेलर्स हैं, ये जो स्टॉल्स हैं जहाँ पे आइसक्रीम बिक रहे हैं, वहां पे आपने अपने पैम्पलेट्स लगवा दिए, वहां पे आपने अपना भी एक, से फॉर एग्जांपल जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आप मार्केट में ऑफर करने जा रहे हैं, कि आपने अपना भी एक आइसक्रीम का वैरायटी उनके यहाँ लगवाया, उसका पूरा पैम्पलेट लगवाया, एंड यू आर ट्राइंग टू रीच आउट थ्रू दैट। देयर कैन बी वेरियस वेज, पर आप उसमें से कौन सा चुनेंगे ये बहुत बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि जो आपका मार्केट क्या है, अगेन आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। ठीक है, क्या ये वो सेगमेंट है जो ज्यादातर ऑनलाइन रहता है, या वो सेगमेंट है जो ऑनलाइन में कम बिलीव करता है और फिजिकल उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, फिजिकल चैनल्स में ज्यादा वो टच एंड फील पसंद करता है, कि हम देख करके सामान लें, टेस्ट करके सामान लें। यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। कुछ चीजों को की जो शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ मतलब ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपको आपका जो प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो आप उसमें लंबा भी अगर मीडियम यूज करेंगे, लंबा चैनल भी यूज करेंगे। लंबा चैनल का मतलब, अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्चुअली बात कर रही हूँ, फिजिकली बात कर रही हूँ, तो आपसे सामान से फॉर एग्जाम्पल किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, किसी एजेंसी से लिया, फिर वहां से वो होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर फिर रिटेलर को बेच रहा है, और रिटेलर से फिर आप तक पहुंच रहा है। तो नंबर ऑफ मिडलमैन यहाँ से यहाँ तक का जो सामान का फ्लो होने में, नंबर ऑफ मिडलमैन जो आप यूज कर रहे हैं, अगर वो नंबर ऑफ मिडलमैन ज्यादा है तो योर चैनल इज लॉन्ग। अगर आप नंबर ऑफ मिडलमैन कम है तो योर चैनल इज शॉर्ट। अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है, उसकी शेल्फ लाइफ कम है, कौन सा चैनल यूज करना चाहोगे? डोंट स्लीप, कम ऑन। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, मैम, और हाँ जी, मैं मिक्स करना चाहिए मिक्स करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे कि ऑनलाइन पे भी जाएंगे, लाइक जेप्टो, ई कॉमर्स, क्विक ई कॉमर्स, और फिजिकली अपनी शॉप पे भी जाएंगे अगर शॉप खोलना हो, या किसी के साथ टाई अप करके करना हो। चलिए आप फिजिकली भी करेंगे, चलिए आप ये मैं मान लेती हूँ कि आप वर्चुअल भी करेंगे और फिजिकल भी करेंगे। फिजिकल पे आपका चैनल क्या होना, मतलब लंबा चलेगा, क्योंकि देखिए अगर चैनल छोटा होगा तो उसकी कॉस्ट हाई होगी, चैनल बड़ा होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो आप कौन सा चैनल चूज करेंगे, शॉर्ट चैनल और लॉन्ग चैनल? अगर आपका आइटम पेरिशेबल है तो सोचिए। फिलहाल तो मैं शॉर्ट करूंगा मैम। नहीं फिलहाल, या नहीं क्यों, हाँ, और बाद में आप लॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? यस मैम। कैसे लॉन्ग कर सकते हैं आप मुझे बताइए, या अभी आप शॉर्ट क्यों करना चाहते हैं? मैम शॉर्ट इसलिए करना चाहते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट में आपको फीडबैक या कस्टमर को समझने का बहुत इजीली स्टेप होता है, और लॉन्ग में क्या है कि आपने अपनी आइसक्रीम को होलसेल में दिया, उसने रिटेल को दिया, रिटेल ने फिर कस्टमर को दिया, फिर कस्टमर की फीडबैक रिटेलर को आई, उसने होलसेलर को दिया, फिर मेरे तक आई, तो प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा। प्रोसेस इसलिए काफी पहले लंबा होगा, short, और आपके प्रोडक्ट की भी एक शेल्फ लाइफ है ना जो कि खराब हो जाएगी। आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने टाइम तक ही वो ठीक रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा, उसका एक्सपायरी डेट भी तो कुछ होगा। तो अगर एक्सपायरी डेट आपका जल्दी है, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल है, तो ऐसे केस में जो फिजिकल चैनल है, अगर आप उसको जितना शॉर्ट रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो इमीडिएटली पहुंचेगा आपके कस्टमर तक। लंबा करेंगे तब तो बाय द टाइम इट रीचेस कस्टमर, एक्सपायरी डेट उसकी पास आ जाएगी और यह प्रोडक्ट एक्सपायर कर जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैंने कहा कि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है दैट ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना चैनल डिसाइड करना है कि आप
फिजिकल में भी लॉन्ग चैनल को चूज करेंगे या शॉर्ट चैनल को चूज करेंगे। अब जैसे मान लो कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होता, लंबा चैनल में जाने दो, वो तो 10 साल चलता है। एक वॉशिंग मशीन आपकी, उसकी एक्सपायरी डेट तो जल्दी आती नहीं है, होने तो लंबा चैनल, हाउ डज इट मैटर। लेकिन पेरिशेबल में इवन दो द कॉस्ट इज हाई, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लॉन्ग चैनल। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, देन इट कम्स कि आपकी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है और उसका एज इन द सेंस कि कितना टाइम आपको हुआ बिजनेस में आए हुए। अगर आप एक नए हैं, न्यू भी है ना, नए हैं मार्केट में, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपकी कंपनी ओल्ड हो चुकी है, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो आपका नाम सभी कोई जान रहा है, तो जो चैनल पार्टनर्स वो खुद ही आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, isn't it? Now you have better options, alternatives है आपके पास बहुत ज्यादा है, because you're already known in the market. तो उसमें आपके पास चॉइस के ऑप्शन ज्यादा होंगे। यहाँ पे क्या, अगर आपकी कंपनी न्यू है तो आपके पास चॉइस के ऑप्शन ही कम है, तो जो एजेंसी वाला आपका लेने को तैयार होगा आप उसी को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, और भी बहुत सारे इस तरीके से फैक्टर्स हैं जो कि हमें जानने जरूरी होते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन होना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आप जो मॉडल तैयार कर रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस में, ठीक है मेरा प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन कस्टमर्स तक मैं इस तरीके से पहुंचाऊंगा, तो वो जो तरीका होगा वो आपका बिजनेस मॉडल तुरंत बता देगा कि वो तरीका, उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या आ रहा है, ये वायबल है कि नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ तक आप लोगों ने अपना अपना कुछ लिखा है कि क्या क्या करेंगे इतने डिस्कशंस को ध्यान में रखते हुए, कि नहीं लिखा है? यस मैम, लिखा। हाँ ठीक है, वो तो मैंने कहा ना, फोटो आप क्लिक करके भेज भी देंगे शर्मा जी के पास या ज्योत्सना जी के पास, तो वो उसको देख भी लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको फिर उसमें कुछ अच्छे वैल्यूएबल सजेशंस भी दें। नेक्स्ट कम्स योर कस्टमर रिलेशनशिप। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका कस्टमर है कौन। अगेन सेगमेंट में अगर आ जाए, ठीक है, जब आप कस्टमर रिलेशनशिप पे आ रहे हैं, उस वाले ब्लॉक में आ रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका कस्टमर कौन है। तो आपके सेगमेंट ने बताया कि जी आपका जो कस्टमर है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर है, यानी जो कस्टमर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स होते हैं और एक एंड यूजर्स होते हैं, जिसको हम अल्टीमेट कस्टमर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी कोई कह भी रहा था ना कि कस्टमर या चैनल्स कोई क्लियर नहीं है, तो आप इन डिस्कशंस को ध्यान में सुनते रहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स वो होते हैं जो कि बल्क में चीजों को खरीदते हैं लेकिन खुद नहीं कंज्यूम करते हैं, वो उसको रीसेल कर देते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर। से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आइसक्रीम को कोई एजेंसी वाला खरीद रहा है तो आपके लिए वो भी एक कस्टमर हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आपका कस्टमर वही हो और वो अपने ब्रांड नेम से, मतलब हो सकता है ना ऐसा, या तो अपना ब्रांड नेम आप खुद बनाइए, या तो आपने आइसक्रीम बना के दे दी, अगला बंदा क्या करे, उसकी ब्रांडिंग करके उसको बेच रहा है, आपको आपकी आइसक्रीम के पैसे मिल गए, उसको उसके अपने ब्रांडिंग और अपने नाम के पैसे मिल गए। दिस इज जस्ट अ वैल्यू प्रोपोजिशन दैट आई एम सजेस्टिंग, इट इज नॉट दैट आई एम टेलिंग यू टू डू सो, मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे केस में आप, मतलब पहले तो आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर है कौन। ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर है, उसको डील करने का तरीका अलग है, उससे आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे, वो कैसे खुश होगा जब आप उसको ज्यादा डिस्काउंट्स देंगे, ठीक है ना, या आप उसको क्रेडिट बढ़ा देंगे कि आप कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, आप मेरा माल उठा लो, आप 2 महीने के बाद मुझे पैसे देना। फॉर एग्जाम्पल कि तपनजीत के लिए मैं एक मार्केटिंग एजेंसी हूँ और मैं अलग अलग जगह से आइसक्रीम्स खरीदती हूँ, उनकी ब्रांडिंग करती हूँ और अपने नाम से, सानवी के नाम से, मैं उसको सानवी आइसक्रीम्स, मैं उसको मार्केट में सेल ऑफ करती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब मैं अपने आइसक्रीम जो सप्लायर्स को जब मैं चूज कर रही हूँ, मैं भी एक बिजनेस कर रही हूँ ना, तो एक तो देखिए आपके लिए मैं कौन हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स हो गए, और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि से फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कितना लंबा क्रेडिट टाइम देंगे। क्या आपकी आइसक्रीम मैंने उठा ली और आप कहते हैं जी कोई बात नहीं मैडम, 6 महीने में पैसे दो, तो कोई बात नहीं, कीप इट विद यू, आराम से देना, तो हो सकता है कि मैं किससे अट्रैक्ट होंगी, क्रेडिट पीरियड से। या हो सकता है कि आप कहते हो कि नहीं, आप जो जिस कॉस्ट पे आप मुझे सेल ऑफ कर रहे हो वो रिलेटिवली कम है, isn't it? So all these things you need to keep in mind। और वो कैसे इंपॉर्टेंट होगा यही जानना कि किस तरीके, अगर मान लो एंड यूजर है, ये तो एक हो गई कि ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर कि मैं खरीद तो रही हूँ पर खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि फर्दर रीसेल करने के लिए। लेकिन एक होते हैं एंड यूजर्स, होते हैं जो अल्टीमेट कस्टमर्स होते हैं, वो खरीदते भी और कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, तो उनके साथ जो रिलेशनशिप बनाना है उनका तरीका डिफरेंट हो सकता है। क्या आपने देखा कि एक तो जी आपने उनके टेस्ट का बनाया कि जो उनको, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हेल्दी आइसक्रीम की बात करें तो आपने एक ऐसा आइसक्रीम बनाया कि फॉर एग्जांपल अगेन जिसमें दूध, बिल्कुल वीगन आइसक्रीम आप बना रहे हैं, दूध यूज ही नहीं हो रहा है,
नीश मार्केटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। अब उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आप कैसे मेंटेन करेंगे? देयर कैन बी वेरियस मीन्स, बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। वो सारा आप चॉक आउट करिए वहां पर कि ये हमारा जो कस्टमर है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा अल्टीमेट कस्टमर यानी कि एंड यूजर है, वही यूज कर रहा है, तो इसको हमें कैसे खुश रखना है, ठीक है। अगेन कस्टमर रिलेशनशिप में आगे फर्दर बताने से पहले मैं आपको बताऊं, कस्टमर रिलेशनशिप भी आप देखें कंपनी वाले भी बड़े स्मार्ट होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। अगर आप अपने ऑब्जर्वेशंस लगाइए तो हर कस्टमर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। वो कैलकुलेट करते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। जिस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा होती है उन पे उनका फोकस ज्यादा होता है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में वो ज्यादा समय और ज्यादा पैसे लगाते हैं, पैसे इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट वाउचर्स और डिस्काउंट कूपन्स और व्हाट्सएवर, इस पे भी हम लोग आएंगे। और जिनकी सीएलवी कम है मान लो, ठीक है, उस पे वो अकॉर्डिंगली, क्योंकि जिसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कम है उसमें आपने ज्यादा पैसा लगा दी, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ ना। अब आप कहोगे जी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती क्या है? तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये होती है कि सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं हर रोज की एक आइसक्रीम खाती हूँ, ठीक है, और पूरे महीने के 30 दिन में आइसक्रीम खाती हूँ और मैं रोज आपके यहाँ से लेती हूँ, और आपके आइसक्रीम की कीमत कितनी है? 30 रुपीज, ठीक है। तो मेरी जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो गई वो 30 इंटू 30 एक मंथ की हुई। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से आप साल का कैलकुलेट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो बिजनेस मॉडल जो आप बना रहे हैं, जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यू देखेंगे, जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आप देख रहे हैं, उसका जो मतलब वो पीरियड क्या है, वो आप 1 साल का देखना चाहते हैं, 6 महीने का देखना चाहते हैं, या 3 महीने का देखना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एवरी 3 मंथ्स अगर आप अपना रिव्यू करते हैं बिजनेस मॉडल को कि क्या मेरा मॉडल प्रॉफिटेबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 30 इंटू कितना करेंगे? 30 तो रुपीज हो गया उस आइसक्रीम का कॉस्ट। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? कम ऑन, 90, क्योंकि 90 डेज हो गए ना 3 मंथ्स में, तो 30 इंटू 90, 30 इंटू 90 वुड कम टू हाउ मच? लिखिए आप अपने इसमें चैट बॉक्स में 30 इंटू 90। सो तो नहीं रहे हो, लिखो फटाफट चैट बॉक्स में 30 इंटू 90। यस, आयुष पाठक ने सही जवाब दिया है। 30 इंटू 30 इंटू 3 कितना आंसर होगा? फटाफट बताओ। 2700। 2700, ठीक है। तो वो 2700 क्या हो गई? मेरी लाइफ टाइम वैल्यू हो गई। अब आप देखोगे इस तरीके के, ये तो एक सेगमेंट हो गया। अब आप देखोगे कि क्या कोई ऐसी भी फैमिली क्या जहाँ फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, 10 वीगन हैं, और वो 10 लोग जो है वो आइसक्रीम खाते हैं और रोज की खाते हैं। मान लो वो नहीं रोज की खाते, वो हफ्ते में 1 दिन खाते हैं। Anupriya ji, हाँ जी, there is one participant who has joined now अच्छा, in the session. ओके, उनको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन अच्छा, चाहिए, so you alright, can alright. be bilingual that way, so Okay, that okay. it is convenient for all. All right, Yeah. okay. So as I suggested, we need to calculate the customer lifetime value. And when I say customer lifetime value, that means we need to see the price. What is the price that the customer is paying to me, and what is the frequency of the purchase that he or she is making. So you need to compare the lifetime value of different segment of customers, and then you'll identify, yes, this is the most profitable customer. So in terms of maintaining relationship with this customer segment, I'll spend more money as a company. I'll spend more money, ज़्यादा पैसे मैं खर्च करूंगी vis-a-vis to the next segment where the customer lifetime value is less. Getting my point? And not only that, what if 10 customers, 27,000 if reviewed in 3 months? Yes, Ayush, you are right. So, and not only that, सिर्फ आपका customer lifetime value ही नहीं देखना है, you also need to check because cost is involved, and you have a different block for cost also. ये मेरी wall थी, and in this wall only I'm trying to prepare the business model canvas. So one block was customer relationship, the other is cost. So customer relationship block will tell me what is the cost involved in maintaining the relationship with the customer. The same cost will come and it will be filled in the cost structure box also, right? So you'll see while maintaining the relationship also, again you will see what is the customer acquisition cost and what is the customer retention cost. What is the customer acquisition cost? Means to acquire a particular customer in a business, how much do you spend? So for example, you spend rupees 1,000 and you have 10 customers in the business. So per head, the expenditure is how much? The new entrant who has joined new, can you please calculate and tell me?
1,000 is the cost involved, and there are 10 customers. So what is the cost per head? Communication cost or advertisement cost per head will be 100, isn't it? Right? So your customer acquisition cost is 100 rupees. And while trying to retain the customers, what you're doing, the same customer, you're spending some time and effort and maybe money so that they come to you only and they don't go anywhere else. So for example, if you say that if you buy 10 ice creams together, you'll get the 11th one free. And the cost of the ice cream is 30 rupees. In that case, you are giving 11th one free. That means you spend how much money? Rupees 30, isn't it? So now you're comparing the acquisition cost and the retention cost. Acquisition cost was 100. Retention cost is 30. Which cost is lower? Retention cost, obviously. So it is always better to maintain relationship with the customer, because in order to get new customer, you have to shell out more money. And if you retain the customer, your money will become, at the same time they work as brand ambassadors for you and they'll bring more customers to you. So it is always cost effective to retain the customers in the business. All right. So that strategy also you need to chalk out. Next you have to see, like we have seen that we can go to cost structure also to fit that particular cost there. Then in business, what is important is the inflow and outflow of cash in your business. When I say inflow and outflow of cash in your business, that means you have to check all the ways and means through which the cash is coming into your business and all the ways and means for which the cash is going out of the business. So cash outflow means all the expenditures that you are making. The outflow is a kind of cost. Whereas when I say cash inflow means the money coming into the business. Money coming into the business means that is the revenue part for you, right? So now you have to see what is the revenue stream. How do I make money? Do I make money by selling ice creams only? Or do I make money more when I am joining a platform like Zomato or Swiggy? You're getting? So how do I make more money? Again, you have to find out. Next, do you have other customers also? You do have different varieties of ice creams also. Say, for example, you are making vegan ice cream. So niche marketing ka case ho gaya. At the same time, you are also making popsicles for the families who are vegan and the children are also vegan. In that case, there are two sources of making money. One is that particular segment and the other is the other segment. The two sources of, so you need to check the revenue streams. Likewise, if you have a different business altogether, you also have a business of, say for example, curd. Your customer segment is different, right? So the other source of money is your curd. So you need to prepare the different streams. What are the various sources through which you get money? Let us take another example to understand it more clearly. There are certain, say for example, you are into the manufacturing of perfumes. All right. So there must be certain byproducts also, which does not come out as, with good fragrance as it should be. So you're not discarding it. You are collecting that byproduct. You're collecting that product, which perhaps it is not as good quality as you intend to give to the customers. So the good quality perfumes you have created a separate category. The relatively lesser quality, perfume, all right, you have created a different segment for it. Say for example, you're using it for car perfumes. So again, the revenue streams are different. How much money are you bringing in from the perfume category, for which you are known in the market, and the byproducts which are there, uske through jo paisa aa raha hai, even that is a source of money for you. So you need to chalk out the different sources of cash inflows, कि कैसे कैसे आपके business में वो पैसे आ रहे हैं. So again, what is important here? How do I make money, and and each customer segment is paying how much and what for they are paying. If a particular segment is paying more, that means that revenue stream is more profitable. Concentrate more on this. If a particular segment is just relying on break even, you have to wait, you have patience. But if a segment is giving you, loss, that you're not able to meet out your expenses, even meet out your costs, even, forget about this particular segment,
right? And even this will decide you the pricing strategy also. What price are you going to charge for what kind of commodities, right? So this becomes revenue streams. Next is, you can say, resources. What are the resources? This all you have talked out, you have identified. Now, to do all this, what are the different resources which are required? Do you have it? And if you don't have it, do you have to acquire it by paying certain cost? Again, the column 6 of resources will give you some information which will be fit into the other column, which is cost structure column. So you're taking the information from resources column and putting it on the cost structure column, right? So what are the resources required? They may be financial resources, they may be physical resources, plants and machinery, they may be intellectual resources, say for example, the technical know-how, the technology, or human resources. So if you're in services, the most important, although in every kind of business, the most important resources are human resources, but when it comes to services, it becomes all the more important, because only they can, services is intangible. So it depends upon the effectiveness of the people who are rendering it. You cannot render all the services on your own to all the customers, to the customer segment all across. So you need to have various people working for you. So unless these resources are effective, you cannot be effective. And if you're not effective, there can be no revenue. So you need to identify what are the resources which are required, right? Next, we'll go to the partners. Who are the key partners who are important in the business? And what are the resources from where we can acquire them? Again, for this column, what information do you need? You need an information which was there in the earlier column, the key resources column, right? And what is the important work that these partners are going to perform? They will decide the activity that these partners do. That will decide which partners is more important in the business, right? So you need to identify the partners also. And then you need to do the activities. You need to chalk out the activities. What all activities do you do? Whatever value that you are providing, it involves what kinds of activities. Whether you are dealing with tangible products, or you are dealing with intangible products, or you are into supply chain management. So what is the kind of activity that you do, and what are the various activities you need to do to become expert at a particular activity, right? If you want to become expert in, say for example, rendering the services only, so what all activities should you do? You have to think what all activities maybe Uber would have done, ठीक है, या Zomato ने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो आज अपना पोजीशन मार्केट में बना पाए हैं. They have created a name of their own. They have created a brand of their own. So what all activities would have done? You need to accordingly, you need to, or like similarly, you need to chalk out various activities that you need to do in order to be as good as those people in your particular area, right? Next, as I said, comes to cost structure, which is again very, very important, because this is something that will tell you the viability of your business, the feasibility of your business, whether you are above the break-even point or not. If you're, say for example, your total cost is equal to total revenue, break-even point, right? So now you have to find out whether you can reduce cost in order to be profitable, or you need to generate more income. It all depends, right? So now let us see what all kinds of costs do we have. So first of all, on the document, on the sheet that you're preparing, the business model, you have to understand what are the important costs which are important to create and operate the business model. All right from the beginning, right from the inception model, जब से आपके दिमाग में आइडिया आया, and you have reached to a level of creating a minimum viable product, there must be some cost involved. कुछ नहीं तो मार्केटिंग रिसर्च का कॉस्ट तो है ही है, वहीं से कॉस्ट. सो ईच एंड एवरी कॉलम विल गिव यू इंफॉर्मेशन which is fit for this column, which is cost structure, right? So for every from every column you have to dig out the information, you have to take the information and put it here. That is why I say on a single page or maybe on the wall, you have to prepare it simultaneously. All the 9 columns you are making,
Had it been a physical class, I would have shown you all the 9 columns you have made on this particular wall, for example. And whenever you are making a particular column, that information may be important in the other column as well. Right at the moment, you take that information and put it in the other column as well. Here you are doing it. At the same time, you are posting it at the other column as well, right? So as I said, we need to identify, we need to think of all the costs that can be there, and of all the costs, what are the most important costs which cannot be overlooked. You cannot work without that. Say for example, if you are into manufacturing of commodities, so if you don't have raw material, can you produce? No. So cost of raw material is important. You cannot overlook it. नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है? Maybe अलग अलग different shape के जो molds हैं, उसकी variety को you can do away with that. But raw material you need to have, right? Likewise, you have to see what are the most expensive resources that are being used in the business. ठीक है, उनको अलग से एक highlight करना. You need to highlight the most expensive resource that is there in your business. While you're preparing the resources column, highlight that particular resource which is very expensive, because that would be a central point. You need to see, you need to create a check and balance, or maybe you need to innovate so that that particular cost, which is the highest, it comes down, it reduces. All right. And then you need to see what is the fixed cost, what is the variable cost in your business. All right. While preparing the MVP, what cost did you incur? While preparing the product market fit, what cost do you incur? So all these costs, they come in this business in this column of cost structure and business model canvas, right? So this is how, this is the 9th building block that I was discussing, the cost structure. Okay. Likewise, as I said, you have to make 9 different columns on a maybe piece of paper or maybe on a wall. All right. Prepare different 9 columns, start digging information, start seeking information, put it down here, and simultaneously you have to put the information at the other columns as well, and the whole business model will be prepared, and you can see that in a glance. Not only you can see it at a glance, but also your co-founder, if any, can see it. Your investor, if any, you can also, while discussing your business idea, you can use it as a supporting document to present it to them, right? So this is, in a nutshell, I would say these are the 9 building blocks of business model canvas. And I hope you have prepared simultaneously on a piece of paper the business model. And if you have done it, you can click a photograph, send it to Dr. Jyotsna Dikshit or Dr. O.P. Sharma, right? Maybe they can see if there is some potential in there. We can further work on that. And if you have some questions or queries, you're most welcome to ask it. Tamil Mani, do you have any questions? Since you joined later, Tamil Mani, the name is showing as such. I don't know what your real name is. Ma'am, हाँ जी, मैम की एक्टिविटी एंड की रिसोर्स एक बार थोड़ा सा बता दीजिए. देखिए की एक्टिविटीज क्या क्या होंगी आपके बिजनेस में, राइट? आप जैसे कोई एक एग्जांपल दीजिए, आप कोई है आपके थॉट में? नहीं तो फिर मैं अपना एग्जांपल दूंगी. मैम अपना एग्जांपल दीजिए. हाँ, say for example, I am willing to work as a platform, ठीक है, which is bringing the buyer and the seller together. All right. So what all activities do I need to do? I need to identify the list of service providers. Say for example, if I'm into the food business, या चलो मैं Uber वाली हूँ, ठीक है. So I need to identify the list of taxi owners or people who are willing to convert their car into the taxi services. So I need to identify the particular list. That is one activity. All right. The other activity is I need to float this idea to the market that yes, I am here with this particular kind of platform. So what all customers would require these services? गाँव के हाथों में तो ये सर्विसेज ज्यादा यूज नहीं होती ना. कहाँ पे ज्यादा यूज हो रही? मेट्रो सिटीज में, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत जैम है. So people prefer to have these kinds of taxis rather than taking their own vehicles. So this is another key activity to identify which area is suitable.
But likewise, there are certain key activities that you need. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या आपका एग्जांपल ले लें, आपका कोचिंग क्लासेस का है ना यस मैम, ई अरुण? लर्निंग, यस मैम। हाँ, तो आप बताइए कौन कौन सी की एक्टिविटीज करेंगे। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि यही हमारे रिसोर्सेज, दीज आर माय पार्टनर्स और रिसोर्सेज। से फॉर एग्जांपल, इन योर ओन हाउस यू हैव टू ब्रदर्स, one is excellent in physics, the other is excellent in commerce, so you have two teachers at home. ठीक है, these are the two resources. Yes, These are the two resources. Yes, ma'am. Activities is that you are trying to enter into an agreement, whether it can be signed agreement, it can be unsigned agreement. एक activity क्या हो गई? Resources वो आपके दो भाई हो गए. Activity is that you are contacting them and you are entering into a contract with them that every day 2 or 3 hours they will give to your coaching classes, and in turn you will be giving them this much of money. मैम आप बता रही थी ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, रिसोर्सेज में कुछ एड ऑन कर रही थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। किसके बारे में बताइए फिर से? ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपका जो बिजनेस हुआ ना, दैट इज इंटेंजिबल बिजनेस। ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप आप पढ़ा रहे ना बच्चों को, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आपको ना कोई फिजिकल चीज तो मिली ना कॉपी मिली, ना किताब मिला, ना चौक मिली, ना पेन मिला, कुछ नहीं मिला। इट इज जस्ट अ सर्विसेज, व्हाटएवर आई नो आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। ठीक है, एक इंटेंजिबल सर्विस हो गई। ऑलराइट, अब लेकिन इसको करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मैं अकेले कर रही हूँ? एम आई डूइंग इट ऑल अलोन? नो। अगर मान लो आपका कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा होता है, आप पूरे इंडिया में अपने कोचिंग के वो फ्रेंचाइजी देते हो और खोलते हो, कोई भी कोचिंग सेंटर ले लो, तो ऐसे केस में यू कांट वर्क ऑल अलोन, यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, you need to hire resources. So for your business, human resources are very, very important. Unless you have good teachers with you, you cannot create a niche in your market. You cannot position your brand in the market, isn't it? If you say, for example, if some kid wants to prepare for medicine branches, उसको डॉक्टर बनना है, तो आकाश को पकड़ लेता है। अब तो बाइजू ने ले लिया मान लो एग्जाम्पल। इंजीनियरिंग वाला बच्चा क्यों जाता है फिरजी में, क्यों जाता है एलन में? कोई छोटे छोटे कॉर्नर भी तो खुले होंगे ना, क्यों इन जगहों पे ही जा रहा है? बिकॉज दे हैव पोजीशनिंग देमसेल्फ, और उनकी जो पोजीशनिंग हुई है वो सिर्फ अकेले उस ओनर के दम पे नहीं हुई है। ऑल द टीचर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड देयर सर्विसेज, वो उनका कंट्रीब्यूशन है। तो जो यहाँ पे ब्रांडिंग बनी है वो ओनर के कारण, अपने सिर्फ अकेले उसके कारण नहीं बनी है, बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज यूज किया है उसके कारण बनी है। तो सर्विसेज में हमेशा ह्यूमन रिसोर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज द ओनली एक्टिव रिसोर्स, रेस्ट ऑल द रिसोर्सेज आर पैसिव। अपने आप मेज उठ के यहाँ से वहां नहीं खिसक सकता ना, अनलेस यू हैव समवन इन द ऑफिस हु सेट्स इट। वो उठा के एक पर्टिकुलर जगह पे रखता है, अलमारी आपकी सेट करता है, तो वो अदरवाइज ये सब लाइफलेस हैं, ये अपने आप से मूव नहीं करेंगी। सो यू नीड ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर इंपॉर्टेंट। बट व्हेन इट कम्स टू इनटैंजिबल कमोडिटीज और सर्विसेज रेंडरिंग के अगर आप बिजनेस है, तो उस केस में ह्यूमन रिसोर्सेज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिंग द सर्विसेज। आपका सामान कुछ नहीं है, जैसा वो करेंगे वही आपका सामान है। अगर वो अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, आप अच्छे हो, आपका ब्रांड का पोजीशनिंग हो रहा है। अगर वो अच्छा बिजनेस नहीं दे रहे हैं, आप कितनी भी अकेले मेहनत कर लो, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग नहीं होगी, आप अपना नाम नहीं बना पाओगे। तो इंपॉर्टेंट वहां पे ये देखना होता है कि आप किन किन ह्यूमन रिसोर्सेज को वहां पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते रहना, सो दैट दे आर अपडेटेड इन देयर फील्ड्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और जो आप टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की बात कर रहे थे, से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसी चीज बनानी जिसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, ठीक है, कोई कोडिंग की बात कर रहा था, ऐसी कोई भी कमोडिटी आप ले सकते हैं जिसमें यू नीड टू यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। सो डू यू have that skill? Do you know that technology? If no, then you have to buy it or you have to rent it, isn't it? So you have to see that cost. Are you in the position to afford the rent of that technology or not? That becomes important. Yes. Any other thing that you want to discuss? Most welcome. Most welcome. और कोई चीजें जो आपको डिस्कस करनी है? Any student? Ayush says that in which cases human resources are less necessary. Example, I need to develop a web forum for students for IGNOU. Yes, again, as I said, if you own the skill, to develop the website, whatever the technical term is, Dr. Josna is the right person to answer it.
So if you have the skill, if it requires only website development, all right, in that case other human resources are not that important, you are important. But if it requires the involvement of more than one like you, then in that case, in your kind of example, human resources are important. लेकिन जो ऑटोमेटेड चीजें होती हैं, राइट, जो चीजें सेल्फ मैकेनिक हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से चल रही होती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ती है. मैंने कहा ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत तो हर जगह है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं होगा. आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो. सारे नेचुरल रिसोर्सेज वुड हैव केप्ट आइडल अगर ह्यूमन इन्वेंशन ही नहीं होते. आपका खुद का डेवलपमेंट जो आज हम बंदर से इंसान बने बनते ही नहीं, isn't it? अगर वो रिसोर्सेज नहीं होते. दिस इज द पावर. इसी पावर के थ्रू इन्वेंशंस हुए, इसी इन्वेंशंस के थ्रू डेवलपमेंट्स हुए, एंड टुडे यू एंड आई आर हियर. सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बट वही मैंने कहा कि कुछ जो आपका बिजनेस ऐसा है जो सब ऑटोमेटेड है, वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें टेक्नोलॉजी की ज्यादा यूज. आपने एक फैक्ट्री खोली है, सारा काम के लिए मशीनें आपने लगा रखी हैं, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की आपको ज्यादा जरूरत नहीं, लेस रिक्वायर्ड है. लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन लेस रिक्वायर्ड है. लेकिन अगर आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे सारा काम आप पैकिंग लेबर से करा रहे हो, उनकी साइजिंग मोल्डिंग आप लेबर्स कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, राइट? एनीवन एल्स? यस तपन. मैम, जैसे कि जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, या वो इसको ट्राई करें, तो वो मैम इस 9 में से किस सेक्शन में आएगा? एडवर्टीजमेंट जो आएगा, हाँ, एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो आपका चैनल में भी आएगा, बिकॉज यू रीचिंग द कस्टमर. और मैंने कहा ना, और वहीं से उठा करके आप उसको कॉस्ट में लाओगे भी. आप तो एक तो तरीका दिखाओगे चैनल में, यू आर रीचिंग थ्रू एडवर्टीजमेंट, से फॉर एग्जांपल ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं हुई. आप अपने फेसबुक पे डाल रहे हो, नो कॉस्ट इन्वॉल्व. उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी कि अगर बिजनेस पेज बनाने के लिए कुछ फी है तो वो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है. लेकिन से फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग टेलीविजन मीडियम, यू नीड टू पे अ प्राइस. सो चैनल में भी आप उसको दिखाओगे, और जो उसकी प्राइस पे कर रहे हो वो आप दिखाओगे कॉस्ट स्ट्रक्चर में. ओके मैम, क्या वो की एक्टिविटी में भी आएगी? क्या चीज? नहीं, की एक्टिविटी में वो नहीं आएगा. की एक्टिविटी में अब वो आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बन के तैयार हुआ, ठीक है ना, जिस सोर्स से आप पैसे कमा सकते हो, उस सोर्स को बनाने में आपने जो जो एक्टिविटीज की, वो की एक्टिविटीज हैं. जैसे आपकी आइसक्रीम में आपने अपना रॉ मटेरियल खरीदा, वो की एक्टिविटी है. आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किया, वो की एक्टिविटी है, ठीक है ना. आपने उसकी टेस्टिंग कराई, वो की एक्टिविटी है, ठीक है. अगेन वो कौन सी की एक्टिविटी में क्या चीज आएगी? मैंने कहा ना कि it is such a flexible and beautiful thing. I tell you, Tapan, business itself, this is, see, you may use certain principles. इसीलिए कहते हैं ना, साइंस और आर्ट दोनों ही है बिजनेस, कि कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे आपको गाइडलाइंस लेना तो है, बट इट प्रोवाइड्स यू हेल लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. You can do whatever you want to do. The only thing is you should be able to prepare a document which gives you a clear picture. Look, this is the model through which I'm going to do business. If you are happy seeing that particular model, it is worth showing to someone else. Someone else means the investors, isn't it? And if the model itself says that it needs modification, आप अपने दोस्त को बुला के वो अपना वॉल दिखाओगे तो कहेगा यार यहाँ ये गड़बड़ लग रही है भाई, इतने पैसे तो नहीं आ रहे, तो इतने मेहनत की, तो आपकी कमी वहीं पता चल गई ना. So that is why it is said that it is a strategic document which tells you what is the areas that are problematic and in what area you have to work and what is to be done, right? ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए, ये बिजनेस प्लान नहीं है, याद रखना, ठीक है. उस पर हम कभी दूसरे सेशन में आएंगे. दैट इज अनदर थिंग. Any other question? All right. Thank you for the patient listening. Thank you very much, Dr. Nupriya. Wonderful session as always. And it was very interactive also, and the way you explained the business model canvas development with the help of live examples. And Tapanjit, I understand Ayush, Arun, and others also have learned a lot. Because I really wish
I really wish they send you pictures, because I would be interested in seeing the Yeah. snapshot of the business model that they have prepared, the rough one, I would say. Yeah, and because most of the places, even whether they are ebooks or even YouTube video, the business model canvas appears not to be very clear to everyone. They just tell it in a gist and they give example of Facebook or this and that. But the way you have explained is something which I'm pretty sure that everyone has understood, and certainly they will be providing us a business model canvas, and then we'll be sharing it with you also. Now I request Dr. Sharma to say a few words. Thank you, Anupriya ji. Thank you, It was sir. really very useful and interactive session as always, because some of the students are highly enthusiastic. They want to do something. And I Yes, I hope can also see that. yes, I hope they must have been benefited, and they will modify their whatever they had in mind in view of the discussion today they have, because simply having an idea is a good thing, but to take it further and then think of all possible pros and cons and these different 9 aspects of business model canvas which Dr. Anupriya has highlighted, I think they will help you in defining your idea, redefining your idea, and then planning further. And as I told you initially, our motive is to convert your idea into a startup. That is one point agenda which we have in mind. So those whosoever is interested in taking his her idea further and then become a good successful startup, we will be there to help you, to mentor you, handhold you, and I hope some of you might have been ignited, might have been motivated to think further in this direction. So if you are having that kind of thinking, then you are most welcome for this mentoring for a startup scheme also. So if you are interested, you can directly write to us that you want mentoring, regular mentoring, because these are the programs which we organize from time to time, but that mentoring sessions we would like to continuously organize throughout the year with those who are really interested, and they might be coming across different kind of problems in their journey. So whenever they have any problem, we would like to connect them with the experts. We'd like to resolve their problem, guide them properly, and I think this is very much required, because I know many of our students, they are interested in doing something at their own, but they are lacking in proper guidance and directions, and for that purpose we are there with you. So thank you very much to all of you to be with us in these 2 sessions. And tomorrow also again you are invited. Join us in time and that get advantage of all these sessions. So thank you very much, Anupriya ji, and all the participating students, Dr. Josna also for coordinating both these sessions. So you can conclude and finally bind up the session, Dr. Josna. Thank you, Dr. Sharma. You have already proposed a vote of thanks. So once again, thanks a lot, everyone. And we expect that you will be joining the session tomorrow also. And as mentioned by Dr. Sharma, you can write to him. I have also put the email ID in the text chat box. You can write to him if you are interested in further mentoring. And I look forward to see you in tomorrow's session. Thank you very much. Thank you, Dr. Anupriya, once again for a wonderful session. Thanks for the opportunity, Dr. Josna. Thank you. And for the motivation with the lovely words that you always say. They are always there. ठीक है, अच्छा, नमस्कार. Thank you. Namaste.